السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ تھا مگر اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا، وہ اس غریب آدمی سے بھی حسد کرتا جو کسی بیٹے کا باپ ہوتا۔ وہ کہتا دھن دولت کس کام کی جب سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ ایک دن جب وہ شاہی دسترخوان سے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا چکا تو حقہ پیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وزیر اس کے قریب کھڑا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سیر کے لیے چلنے کو کہا۔ وہ اس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر باتیں کرتے کرتے محل سے بہت دور نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک بڑے سے باغ میں داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے اور خدا کی قدرت کی تعریف کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے پاؤں تلے زمین کانپنے لگی۔ ساتھ ہی سائرن کی آواز سنائی دی، پھر دھم کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ آواز کے ساتھ دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور پھٹ گیا۔ ان میں سے ایک جادوگر برآمد ہوا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس جادوگر کی سفید داڑھی تھی اور سر سے پاؤں تک سبز لباس پہنے ہوئے تھا۔ صرف پاؤں میں زرد رنگ کی نوکدار جوتیاں تھیں۔ بادشاہ اور اس کا وزیر حیران رہ گئے۔ دونوں بیٹھے تھے جس طرح، ویسے ہی پتھر کے بت بنے رہے۔ جادوگر ہولے ہولے چل کر ان کے پاس آیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ اور وزیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ جادوگر نے پوچھا، حضور یہ بتائیے آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جادوگر اور کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنے جھولے کی جیب سے ایک سیب نکال کر بادشاہ کو دیتے ہوئے بولا، یہ سیب گھر لے جائیں، اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر آدھا خود کھائیے اور آدھا ملکہ کو پیش کیجیے۔ اس کے بعد ایک بار پھر زمین لرزنے لگی، سائرن سا بجا، زور کا دھماکہ ہوا اور جادوگر غائب ہو گیا۔ سکتے کے عالم میں بادشاہ اور وزیر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے جادوگر کی بات پر عمل کیا اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی سال بھی ختم نہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کر دیا۔ اس موقع پر جس طرح جشن منایا گیا اور خوشیاں کی گئیں، ان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، تمام غریبوں محتاجوں کے گھر بھر دیے، سینکڑوں غلام آزاد کر دیے، دوستوں اور رشتہ داروں کی شاندار دعوتیں کی، 4 دن اور 4 راتیں کھیل تماشے ہوتے رہے۔ ننھا شہزادہ ناز و نام میں پرورش پانے لگا۔ اس کے لیے ہر طرف محبت تھی، آرام تھا، عیش تھا۔ جب وہ 14 برس کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بابا جان، میرے دل میں ایک تمنا ہے، بتائیے آپ کے دل میں کون سی خواہش ہے، ہم فوراً پوری کر دیں گے۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا، ابا حضور، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا محل بنوایا جائے۔ اس میں 2 فوارے ہوں، ان میں سے ایک میں مکھن بھرا رہے اور دوسرے میں شہد۔ بادشاہ نے اسی وقت مزدور کو بلوایا اور حکم دیا کہ جلد سے جلد ایسا محل تیار کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سنگ مرمر کا سفید محل تیار ہو گیا۔ اس میں 2 فوارے بھی بنا دیے گئے، ان میں سے ایک سے مکھن نکلتا اور دوسرے سے شہد۔ شہزادہ پہروں ان فواروں کو دیکھتا رہا اور ایک روز شہزادہ فواروں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑھیا گھڑا لے کر محل میں آئی اور مکھن کے فوارے پر جھک کر گھڑا بھرنا چاہا۔ شہزادے کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر بڑھیا کی طرف پھینکا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ گھڑے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بڑھیا خاموش رہی اور اداسی سے قدم اٹھاتی چلی گئی۔ دوسرے روز وہی بڑھیا اسی طرح گھڑا لیے محل میں داخل ہوئی اور شہد والے فوارے سے گھڑا بھرنے لگی۔ شہزادے نے پھر ایک پتھر گھما کر بڑھیا کے گھڑے پر دے مارا۔ گھڑا ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بڑھیا نے ایک لفظ نہ کہا اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی گئی۔ شہزادہ تیسرے دن پھر دیکھا کہ بڑھیا آئی ہے اور شہزادے نے اس روز بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن آج بڑھیا خاموش نہیں رہی۔ محل سے نکلتے نکلتے اس نے شہزادے کو بد دعا دی، شہزادے، خدا کرے تجھے سنہری 3 پریاں کبھی چین نہ لینے دیں۔ بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیارے اور اکلوتے بیٹے نے چپ سادھ لی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا، بے دلی سے کھانا کھاتا، آخر سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دور دور سے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سیانے بلائے اور ان سے دریافت کیا کہ شہزادے کو کیا بیماری ہے۔ یہ لوگ لاکھ سوچتے، سر مارتے رہے، لیکن شہزادے کے دکھ کا سبب نہ جان سکے۔ ایک روز شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کا علاج سیانوں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے،
इस पर बादशाह ने बेताब होकर कहा, बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुझे क्या दुख है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तेरी वजह से बेहद रंजीदा हूँ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। इस तरह शहजादे का दिल भर आया और उसने भराई हुई आवाज में कहा, प्यारे अब्बा जान, मेरा काम अजीबोगरीब है। मुझे 3 सुनहरी परियां चाहिए जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ इनके बारे में सुना है। मैं इनको हासिल करूंगा वरना जान दे दूंगा। ये सुनकर बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। इसे खौफ था कि इसका प्यारा बेटा परियों की तलाश में इससे जुदा हो जाएगा। उसने बेटे को समझाया कि तुम मेरी आंखों का नूर और कलेजे की ठंडक हो, मुझसे जुदा ना होना और परियों का ख्याल दिल से निकाल दो। लेकिन बेटा ना माना। इसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा घिरी घिरी रहने लगी। चेहरा जर्द और आंखें मुरझा गई थीं। अब वो सारा दिन चुपचाप पलंग पर लेटा रहता। इसकी हालत देखकर बादशाह की अपनी हालत बिगड़ने लगी। आखिर सोच सोचकर बादशाह ने फैसला किया कि बेटे को घुल घुल कर मरने से बचाए और परियों की तलाश में जाने दे। हो सकता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादे को सफर पर रवाना होने की इजाजत दे दी। उसने जल्दी जल्दी जरूरत की चीजें बांधी, वो हीरे जवाहरात साथ लिए और खुशी खुशी रवाना हो गया। वो कई दिन कई रातें सफर करता रहा। रास्ते में कई पहाड़ कई वादियां आईं। दिन भर सफर करता और शाम ढलते ही कहीं पड़ाव डाल देता। इस तरह चलते चलते एक दिन एक कुशादा मैदान में जा निकला। इस मैदान में शहजादे का सामना एक द्योनी से हुआ। ये द्योनी बहुत बड़ी और खौफनाक थी। उसका एक पैर एक पहाड़ पर और दूसरा पैर दूसरे पहाड़ पर था। जब वो सांस लेती तो जोर के झक्कड़ चलने लगते। शहजादे ने बड़े अदब से कहा, बड़ी भी सलाम अर्ज करता हूँ, कैसे मिजाज हैं? द्योनी ने जवाब दिया, जीते रहो बेटे, अच्छी हूँ। इसकी आवाज से पहाड़ हिलने लगे। फिर उसने कहा, हैरत है, तुम मेरे साथ इतनी तमीज से बात करते हो। तुम्हारी उम्र के लड़कों को तो बात भी नहीं करनी आती। अच्छा बच्चे, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? शहजादे ने सर्द आह भरकर कहा, बड़ी भी, मैं एक मुसीबत में उलझा हुआ हूँ। द्योनी ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बताओ तो सही, कौन सी ऐसी मुसीबत है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादे ने उदास होकर सर झुका लिया। फिर आहिस्ता से बोला, द्योनी भी, मैं 3 सुनहरी परियों की तलाश में निकला हूँ। इनके बगैर मेरा जीना मुहाल है। इनके लिए मैंने महल छोड़ा, आराम छोड़ा, प्यार करने वाले माँ बाप भी छोड़े। मैं बेहद दुखी हूँ। द्योनी बीबी, ओहो, ये तो बहुत मुश्किल काम है। द्योनी ने सर हिलाते हुए कहा, मैं परिस्तान के रास्ते पर पहरा दे रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानती कि वो सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं। मेरे 40 बेटे हैं जो इस मुल्क में घूमते फिरते हैं, वो शायद कुछ बता सके। अच्छा, रात तुम यहीं ठहरो, शाम को वो वापस आएंगे तो इनसे कहना। द्योनी के 40 बेटों का इंतजार करने लगा। जब सूरज ने अपनी रोशनी समेट ली और रात ने डेरा डालना शुरू किया, तो द्योनी ने अपनी उंगली उठाई और शहजादी की पेशानी को छुआ। शहजादा इस वक्त पानी का घड़ा बन गया। द्योनी के 40 बेटे वादी में वापस आए तो शहजादा घड़े की शक्ल में द्योनी के पास ही खड़ा था। द्योनी का बड़ा बेटा आते ही बोला, आदम बू, यहाँ किसी आदम को छुपा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी बेटे भी धाड़ने लगे, हमें इंसान की बू आ रही है। फिर वो हर तरफ आदमी को तलाश करने लगे। उन्होंने पहाड़ों, ढलानों और वादियों में खोज लगाया, मगर इंसान ना मिला। थक हार कर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब खूब पेट भर लिया और तसल्ली से एक तरफ बैठे तो माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा एक भाई और भी है और वो इंसान है तो क्या तुम करोगे? बड़े बेटे ने जवाब दिया, अगर वो हमारा भाई है तो हम इसको प्यार करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे 39 भाइयों ने भी यक आवाज होकर बिल्कुल बड़े भाई की तायीद की। हम इसको प्यार करेंगे। पलक झपकते में इनके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। द्योनी ने कहा, लो मेरे बच्चों, यही तुम्हारा छोटा भाई है। द्योनी के 40 बेटे इस छोटे से प्यारे भाई को पाकर बेहद खुश हुए। हर देव शहजादे की खातिर मदारत करना चाहता था। एक उठा भेड़ पकड़ लाया, दूसरे ने आग जलाई, बाकियों ने भेड़ की खाल उतारी और बोटियां बनाकर इन्हें आग पर भूनना शुरू कर दिया। खुशी खुशी शहजादे को भुना हुआ गोश्त खिलाया। शहजादा पेट भरकर खा चुका तो द्योनी के 40 बेटे बाकी गोश्त के 2 लुकमों में चट कर गए और सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह द्योनी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम्हारा छोटा भाई 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता है। बेटों ने अफसोस से सर हिलाते हुए जवाब दिया, माँ जी, हम भी नहीं जानते कि वो 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपने भाई को खाला जान के पास ले जाएं, शायद वो कुछ बता सके। द्योनी ने कहा, अच्छा बेटा, इसको खाला के पास ही ले जाओ।
اس سے کہنا کہ اس کی ہر ممکن مدد کرے۔ ماں سے اجازت لے کر 40 دیو شہزادے کو ان پہاڑوں پر لے گئے جہاں ان کی خالہ رہتی تھی۔ انہوں نے خالہ کو شہزادے کے دکھ کا قصہ سنایا اور کہا کسی طرح اپنی سنہری پریوں تک اسے پہنچایا جائے۔ خالہ نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں نہیں جانتی کہ سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ یہ آج میرے پاس ہے، شام کو میرے 60 بیٹے آئیں گے، وہ شاید اس کی مدد کر سکیں، لیکن پہلے میں اس لڑکے کو کہیں چھپا دوں ورنہ میرے بیٹے اسے ہڑپ کر جائیں۔ یہ کہہ کر دیونی خالہ نے شہزادے کے ماتھے پر انگلی سے چھوا اور شہزادہ ایک دم گلاس بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ شام کو دیونی خالہ کے 60 بیٹے گھر لوٹے تو چلانے لگے، آدم بو آدم بو، ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ دیونی نے کہا، احمقو تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، آرام سے بیٹھ کر سارے کھاؤ۔ سارے دیو دسترخوان پر بیٹھ گئے اور مزے مزے سے کھانے لگے۔ دیونی نے گلاس کو انگلی سے بجایا، اسی وقت شہزادہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ ساتھ ہی وہ بیٹے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگے۔ کھانا کھا کر سیر ہو گئے تو بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو دیونی نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ شہزادہ سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہے اور ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ افسوس ماں جی، 60 دیو اکٹھے ہی بولے، ہم سنہری پریوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہیں، لیکن ہم شہزادے کو بڑی خالہ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بڑی عقل مند ہیں، اس کی ضرور مدد کریں گی۔ دیو نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، اس کو بڑی خالہ کے پاس لے جاؤ، ان کو بتانا یہ ہمارا 61واں بیٹا ہے، اسے بھی اپنا ہی بیٹا سمجھیں اور مہربانی سے پیش آئیں۔ دیو نے خالہ کے 60 بیٹے شہزادے کو لے کر اس پہاڑ پر چلے گئے جہاں ان کی بڑی خالہ رہتی تھی۔ بڑی خالہ نے بڑی محبت سے شہزادے کا استقبال کیا اور اس کی دکھ بھری کہانی سنی، لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ پھر بھی اس نے شہزادے کو تسلی دی، بیٹا امید کا دامن نہ چھوڑو، آج کی رات یہاں ٹھہرو، شام کو میرے 90 بیٹے واپس آئیں گے، ان سے پریوں کا پتہ پوچھوں گی، شاید وہ جانتے ہوں۔ یہ کہہ کر دیونی نے اپنے بھانجوں کو رخصت کیا، وہ سلام کر کے چلے گئے۔ جب دن کی روشنی اندھیرے میں بدلنے لگی تو دیونی نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا، شہزادہ جھاڑو بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد دیونی کے 90 بیٹے آ گئے اور آتے ہی آدم بو پکارنے لگے۔ ماں نے جھٹ پٹ کھانا تیار کیا اور انہیں کھلایا۔ جب وہ کھا پی چکے تو دیونی نے پوچھا، اگر تمہیں کوئی چھوٹا سا بھائی مل جائے تو تم انہیں کھا تو نہیں جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، کوئی اپنے بھائی کو بھی کھاتا ہے؟ 90 کے 90 بھائی ایک ساتھ چیخے۔ ماں نے کہا، اچھا قسم کھاؤ، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ سب نے فوراً قسم کھا لی۔ ماں نے جھاڑو پر ہاتھ مارا تو فوراً شہزادہ جھاڑو سے انسان بن گیا۔ دیووں کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بٹھا لیا تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ وہ پیار سے شہزادے کا حال پوچھ رہے تھے۔ شہزادے نے لمبی سانس بھر کر جواب دیا، میں بیمار نہیں مگر خوش بھی نہیں، میری مصیبت یہ ہے کہ میں 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیونی نے کہا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، تم میں سے کون بتائے گا کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں؟ امی جان، میں جانتا ہوں، 90 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے دیونی کا سب سے چھوٹا بیٹا اور شہزادہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 2 گھنٹے تک چلتے رہے، پھر دیو نے شہزادے سے کہا، بھائی ہم بہت جلد ایک باغ میں پہنچ جائیں گے، باغ میں ایک فوارہ چل رہا ہوگا، اس فوارے ہی میں 3 سنہری پریاں رہتی ہیں، فوارے پر جا کر میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہوں گا، تم آنکھیں بند کر لینا، پھر میں کہوں گا آنکھیں کھول دو، تم کھول دینا، جو ہی تم آنکھیں کھولو گے تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ چلتے چلتے راستہ بہت چوڑا ہو گیا اور وہ ایک بہت بڑے باغ میں جا کر ختم ہوا۔ باغ کے عین درمیان میں فوارہ چل رہا تھا، چاندی جیسے پانی کی بوندیں اڑ اڑ کر تالاب میں گر رہی تھیں۔ شہزادہ اور دیو دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیو نے کہا، آنکھیں کھول دو۔ شہزادے نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور یوں ہی کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر دیو نے آواز دی، آنکھیں کھولو۔ شہزادے نے آنکھیں کھولیں۔ تالاب کے پانی میں 3 سنترے گوتیاں لگا لگا کر نہا رہے تھے۔ اس نے فوراً پانی میں ہاتھ ڈالا اور تینوں سنتروں کو نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دیو نے کہا، شاباش، اب سب کام ٹھیک ہو جائیں گے، بس ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم ان سنتروں کو چھیلنے لگو تو خیال رکھنا کہ تمہارے پاس پانی ضرور ہے۔ شہزادے نے کہا، دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرے گا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر جدا ہو گئے۔ دیو جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔
शहजादा बाग में से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया। वहाँ एक सड़क थी और इस पर वो हो लिया। यह सड़क एक पहाड़ी से गुजरती थी। पहाड़ी को पार किया तो एक रेगिस्तान आ गया। शहजादा तपती हुई रेत पर 1 घंटे से ज्यादा चलता रहा। प्यास लगी तो इसे 3 संतरों का ख्याल आया। ऐसे गर्म खुश्क रेगिस्तान में रसदार संतरों से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। उसने जेब से चाकू निकाला और एक संतरे को काट दिया। जो ही संतरा कटा, एक खूबसूरत परी कूद कर बाहर आ गई। ये सुनहरी परी इतनी हसीन थी कि शहजादी की आंखें चुंधिया गईं। वो शहजादे के सामने तपती हुई रेत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर इसने इधर उधर आंखें घुमाकर देखा और शहजादे के सामने हाथ फैला दिया। पानी, मुझे पानी चाहिए। लेकिन शहजादा तो रेगिस्तान में खड़ा था, वहां पानी कहाँ से? अब शहजादे को दियो की बात याद आई। दियो ने इसीलिए कहा था कि जब तक पानी पास ना हो संतरा मत छीलना। शहजादा वो बहुत पछताया। बेचारी परी इसकी तरफ उदास नजरों से देख रही थी। वो सख्त प्यासी थी। देखते ही देखते वो गायब हो गई। शहजादा बेबसी से हाथ मलता रहा और अपने आप को बुरा भला कहने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या हुआ? जब चिड़ियां चुग गईं खेत, परी जा चुकी थी। शहजादा उदास होकर फिरने लगा। इस लंबे चौड़े रेगिस्तान में कहीं नखलिस्तान का नामो निशान तक न था। शहजादी को सख्त प्यास लग रही थी। जब जान लब पर आ गई तो इसको दूसरे संतरे का ख्याल आया। उसने दिल को समझाया, कोई बात नहीं, एक संतरा तो फिर भी बच जाएगा और ये भी मुमकिन है कि दूसरे संतरे में से परी ना निकले। अजीब वाकयात बार बार पेश नहीं आते। ये सोचते हुए उसने दूसरा संतरा भी काट दिया। जो ही संतरा कटा, इनमें से एक नन्ही सी परी उछल कर बाहर निकली। ये सुनहरी परी से भी ज्यादा हसीन थी। शहजादा चौंक कर एक कदम पीछे हट गया और टुकर टुकर परी को देखने लगा। परी ने उसकी तरफ हाथ उठाया और बोली, पानी, मुझे पानी पिलाओ। शहजादा बेबस था। वो खुद प्यासा मर रहा था। पानी होता तो इस परी को दे देता, लेकिन बदनसीबी परी गायब हो गई। शहजादे ने अपना सफर जारी रखा और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि चाहे वो प्यासा मर जाए, आखिरी संतरे को इस वक्त तक नहीं छीलेगा जब तक आसपास पानी ना हो। रेगिस्तान में भटकते भटकते दूसरा दिन भी आधा गुजर गया। अचानक इसे चश्मा बहने की आवाज आई। वो गिरता पड़ता चश्मे तक पहुंचा, हाथ भर भर कर ठंडा पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास बुझाने के बाद उसने जेब से चाकू निकाला और आखिरी संतरा जो काटा। जो ही संतरे के 2 हिस्से हुए, इसमें से एक नाजुक सी परी उछल कर बाहर आ गई। ये पहली दोनों परियों से ज्यादा हसीन और नाजुक थी। उसने भी हाथ बढ़ाकर शहजादी से पानी मांगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। शहजादा इसे चश्मे पर ले गया। उसने खूब सैर होकर पानी पिया और फिर शहजादे के पास खड़ी हो गई। शहजादे ने फैसला किया कि इस परी को किसी डोली या गाड़ी में ले जाना चाहिए, वरना लोगों में बेइज्जती होगी। ये सोचकर उसने परी से कहा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं इंतजार करना, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये कहकर उसने परी को चश्मे के पास एक दरख्त के किनारे पर बिठा दिया और ताकीद की कि यहाँ से हरगिज न हिलना। परी दरख्त पर बैठी इंतजार करती रही। काफी देर हो गई मगर शहजादा लौटकर ना आया। इतने परी को किसी की आवाज सुनाई थी। ये शहजादा नहीं था बल्कि कोई नौकरानी थी जो अपनी मालकिन के लिए चश्मे से पानी लेने आई थी। नौकरानी के हाथ में घड़ा था। जब वो घड़ा भरने के लिए झुकी तो इससे पानी में परी का अक्स नजर आया। नौकरानी ने समझा ये मेरा ही अक्स है। वो इतरा कर बोली, वाह, मैं तो अपनी मालकिन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। उसे मेरी खिदमत करनी चाहिए, ना कि मुझे इसकी। ये कहकर इसने घड़ा जमीन पर दे मारा और अपनी मालकिन के घर चली गई। मालकिन ने इसे खाली हाथ आते देखा तो सवाल किया, पानी कहाँ है? घड़ा टूट गया है। नौकरानी ने गुरूर से जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ, तुम्हारी नौकर क्यों बनूं? तुम खुद पानी ले आओ। क्या कहते हैं तुम्हारे मालिकन? क्या कहने हैं तेरे? मालकिन चिल्लाई, ये खिचड़ी आज यकयक हसीन कैसे बन गई? ये कहकर उसने नौकरानी के सामने आईना कर दिया। नौकरानी ने आईने में शक्ल देखी तो बेहद शर्मिंदा हुई और इसने दूसरा घड़ा उठाया और चश्मे से पानी लेने चली गई। चश्मे पर वही वाकया फिर पेश आया। वो घड़ा भरने लगी तो पानी में परी का चेहरा दिखाई दिया। मैं इतनी हसीन हूँ, मैं यकीनन अपनी मालकिन से ज्यादा हसीन हूँ। ये कहकर उसने दूसरा घड़ा भी तोड़ दिया और मालकिन के पास चली गई। मालकिन ने पूछा, पानी कहाँ है और दूसरे घड़े का क्या हुआ? नौकरानी ने रोब से कहा, तुम्हें मेरा पानी भूलना चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत क्यों करूँ? वाह, मेरा ख्याल है तुम पागल हो गई हो। एक बार आईने में फिर देखो, मालकिन ने कहा। आईना देखकर नौकरानी फिर शर्मिंदा हुई
और तीसरी बार पानी भरने चश्मे पर चली गई। इस दफा भी इसे पानी में वही हसीन चेहरा नजर आया। अब वो तीसरा घड़ा तोड़ने ही वाली थी कि दरख्त पर बैठी सुनहरी परी ने कहा, ना ना, अब घड़ा मत तोड़ना। पानी में तुम्हें मेरा चेहरा नजर आता है, दोबारा झांको। तो नौकरानी ने पानी में देखने के बजाय ऊपर दरख्त की तरफ देखा। इसकी निगाह खूबसूरत परी पर पड़ी। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गई और इसके दिल में खोट था। उसने बड़ी नरमी से कहा, नन्ही परी, तुम थकी हुई लग रही हो, आओ मेरे जानों पर सर रखकर थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहा और सुनहरी परी का खूबसूरत सर अपनी गोद में रख लिया। जब परी बातें करती हुई इसकी गोद में सो गई तो नौकरानी ने अपनी जेब से सुई निकाल ली और परी के माथे में चुभो दी। सुई चुभते ही नन्ही परी एक छोटा सा परिंदा बन गई और उड़कर दूर चली गई। नौकरानी दरख्त पर बैठी रही। जब शहजादा गाड़ी लेकर वापस आया तो नौकरानी सुनहरी परी की जगह बैठी हुई थी। शहजादा इसे देखकर हैरान हो गया और बोला, ये क्या हो गया? नौकरानी ने गुस्से से कहा, हाँ, अब तो तुम यही कहोगे, मुझे तन तनहा दरख्त पर छोड़ गए, दिन भर गायब रहे, अब पूछते हो क्या हुआ? धूप बहुत तेज थी और कीड़े मकोड़ों ने काट काट कर मुझे बेहाल कर दिया। शहजादा बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने नौकरानी से माफी मांगी और इसे गाड़ी में बिठाकर अपने बाप के महल में ले गया। महल में शहजादे और इसकी दुल्हन का इस्तकबाल किया गया। जबरदस्त तैयारियां की गई थीं। हर शख्स खुश था कि इनका महबूब शहजादा परी को ले ही आया। लेकिन जब उन्होंने नौकरानी को देखा तो बहुत हैरत हुई। जैसा सुना था वैसी वो हरगिज न थी। बादशाह ने बेटे से कहा, ये अक्लमंद शायद हो, लेकिन खूबसूरत हरगिज नहीं। शहजादे ने जवाब दिया, ये अक्लमंद भी है और हसीन भी। कसूर मेरा है, मैंने इसे तन्हा छोड़कर गलती की। तेज धूप ने इसका रंग काला कर दिया। आराम करने दीजिए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बादशाह के महल के गिर्द खूबसूरत बाग था। एक दिन बाग का माली पौधों की देखभाल कर रहा था कि एक सुनहरी परिंदा उड़ता हुआ आया और इसके कंधे पर बैठ गया। माली ने खुश होकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सुनहरी चिड़िया ने जवाब दिया, बड़े मियाँ, ये मैं मालूम करना चाहती हूँ कि इस वक्त शहजादा क्या कर रहा है। माली ने कहा, नन्ही चिड़िया, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता कि शहजादा क्या कर रहा है, खैर इतना जानता हूँ कि वो किसी को दुख नहीं दे रहा होगा। परिंदे ने फिर पूछा, अच्छे माली, ये तो बताओ, इस वक्त शहजादे की दुल्हन क्या कर रही होगी? मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त शहजादी के पास बैठी होगी। माली ने चिड़िया को बताया। ये सुनकर चिड़िया गाना गाने लगी। चिड़िया ने उड़ते हुए बाग के 2-3 चक्कर लगाए। फिर वो गुलाब की एक टहनी पर बैठकर गाना गाने लगी। ये फूल जहाँ मैं बैठी हूँ ये भी तो मुरझा जाएंगे। ये गाकर नन्ही चिड़िया उड़ती हुई बाग से निकल गई। मैं आई और माली से शहजादे और दुल्हन के बारे में पूछा। तीसरे दिन फिर आई। हर बार माली वही जवाब देता और हर बार सुनहरी चिड़िया वही गाना गाकर माली को सुनाती। बेचारा माली नन्ही चिड़िया की बातों पर हैरान था और अपने बालों की वजह से परेशान। माली बादशाह के लगाए हुए गुलाब के पौधों की वजह से इसकी इज्जत करता था। एक दिन शहजादा बाग में अकेला टहल रहा था। अचानक इसकी नजर गुलाब के इन पौधों पर पड़ी जिनके फूल मुरझा चुके थे। शहजादे ने इसी वक्त माली को बुलाया और कहा, बड़े मियाँ, हैरत है कि तुम गुलाब की सही देखभाल नहीं कर रहे। देखो, इन पौधों के फूल मुरझा चुके हैं, इसकी वजह क्या है? माली ने जवाब दिया, सरकार, ये एक सुनहरी चिड़िया की वजह से मुरझाए हैं। ये कहकर उसने शहजादे को चिड़िया के बारे में तफसील सुना दी और ये भी बता दिया कि चिड़िया दर्द भरा गाना गाती है और जिस गुलाब की टहनी पर बैठती है वो सूख जाता है। शहजादे ने माली को हुक्म दिया कि बाग में एक फंदा लगाओ और जब चिड़िया आए तो इसे पकड़कर मेरे पास पेश करो। माली ने शहजादे के हुक्म पर दरख्त की टहनी पर फंदा लगाया और अगले ही रोज सुनहरी चिड़िया भी आई। जो ही वो टहनी पर बैठी, फंदा बंद हो गया और चिड़िया इसमें फंस गई। माली चिड़िया को पकड़कर शहजादे के पास ले गया। शहजादे ने चिड़िया को पिंजरे में बंद किया। शहजादे की दुल्हन ने जब इस नन्ही चिड़िया को देखा तो इसे शक हुआ कि हो न हो ये वही सुनहरी परी है जिसे इसने सुई चुभोई थी। इसकी फिक्र हुई कि इसका भेद खुल जाएगा और वो नई मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गौर करने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि वो झूठ मूठ बीमार पड़ जाएगी और कहेगी कि इसकी तकलीफ नन्ही चिड़िया का कलेजा खाकर ही दूर होगी। इस मकसद के लिए इसे डॉक्टर को रिश्वत भी देना होगी ताकि वो वही इलाज करे जो वो चाहती है। खूब सोच समझकर उसने महल के डॉक्टरों के लिए कीमती तोहफे तैयार किए
اور इनसे कहा अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो तुम्हें मालामाल कर दूंगी। सब इंतजाम करके मुकम्मल मक्कार नौकरानी पलंग पर लेट गई और शहजादे को आता देखकर आंखें बंद करके कराहने लगी। शहजादे ने अपनी दुल्हन को यूं तड़पते देखा तो घबराकर बोला, मेरी दुल्हन को क्या तकलीफ है? हाय हाय, डॉक्टरों को बुलाओ। नौकरानी ने कराहते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। डॉक्टरों को फौरन बुलाया गया। उन्होंने शहजादे की दुल्हन को बेचैनी से करवटें बदलते देखा तो सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने शहजादे को बताया कि दुल्हन को एक खास किस्म के परिंदे की कलेजी खिलाई जाए तो इसका दर्द दूर हो जाएगा, वरना बचना मुश्किल है। सबसे पहले डॉक्टर ने जाते हुए कहा, मैंने आज सुबह इस किस्म का परिंदा शाही बाग में उड़ते हुए देखा है। मेरा ख्याल है वो परिंदा तो मेरे पिंजरे में है। ये कहकर शहजादे ने एक गुलाम को पिंजरा लाने के लिए कहा। गुलाम पिंजरा ले आया तो सुनहरी चिड़िया को देखकर नौकरानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, यही तो वो परिंदा है, बड़े डॉक्टर ने जल्दी से कहा। इस परिंदे का गोश्त खाने से शहजादी का दर्द दूर हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर कमरे से निकल गए। शहजादे ने गुलाम से कहा कि सुनहरी चिड़िया को ज़िबा करके इसकी कलेजी भून लाओ। जब गुलाम चिड़िया की कलेजी भून कर लाया तो शहजादे ने अपने हाथों से दुल्हन को खिलाई। वो एकदम खड़ी हो गई, जैसे इसे कोई दुख न था। जब चिड़िया को ज़िबा करके इसके पर नोचे जा रहे थे तो एक पर उड़कर दूर जा गिरा। इस पर किसी की नजर ना पड़ी। बाकी परों को समेटकर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया गया। जिंदगी फिर पहले की तरह गुजरने लगी। शहजादे को अब भी उम्मीद थी कि इसकी दुल्हन की मोहनी सूरत वापस आ जाएगी और वो पहले किसी हसीन परी बन जाएगी। लेकिन दुल्हन का चेहरा तो क्या हसीन होता, आदतें भी खराब होती चली गईं। वो बेहद मकरूर नक चढ़ी होती जा रही थी। एक दिन बुढ़िया जो महल में काम धंधा करने आती थी, सुनहरी चिड़िया का गिरा हुआ पर मिल गया। पर बहुत खूबसूरत था। बुढ़िया ने इसे अपने गिरेबान में उलूस लिया और घर ले गई। घर जाकर उसने पर को दीवार में गाड़ दिया ताकि वो चलती फिरती इस नाजुक और खूबसूरत परी को देखती रहे। एक दिन बुढ़िया महल में काम करने गई कि हवा के झोंके से पर दीवार से गिर गया और गिरते हुए इस खूबसूरत परी में बदल गया जिसको शहजादा दरख्त पर इंतजार करता छोड़ आया था। परी चपके से उठी और कमरे में बिखरी हुई चीजों को ठीक करने लगी। फिर इसने खाना पकाया। खाना तैयार हो गया तो दस्तरखान लगा दिया और दीवार के सुराख में जा बैठी। शाम को बुढ़िया थकी हारी घर लौटी तो सीधी चूल्हे के पास गई। वो खाना तैयार करना चाहती थी। देगची का ढक्कन उठाया तो खाना तैयार था। दस्तरखान बिछा हुआ था। इसने कमरे में चारों तरफ देखा। हर चीज करीने से पड़ी हुई थी। कमरा भी साफ सुथरा था। बुढ़िया तो बहुत हैरान हुई। ये काम किसने किया, वो सोचने लगी। दूसरे रोज बुढ़िया की हैरत में और इजाफा हुआ। किचन से वापसी में उसने सोचा, घर कितना साफ है, हर शय ठिकाने पर रखी हुई है, खाना तैयार पड़ा है, लेकिन घर में कोई नहीं। बुढ़िया ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, मैं इस मामले की तह में पहुंच चुका हूँ। ये काम किसने किया, वो सोचने लगी। दूसरे रोज बुढ़िया की हैरत में और इजाफा हुआ। किचन से वापसी पर उसने सोचा, घर कितना साफ है, हर शय ठिकाने पर रखी हुई है, खाना तैयार पड़ा है, लेकिन घर में कोई नहीं। बुढ़िया ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगी। अगली सुबह वो रोज की तरह तैयार हुई और कमरे से निकल गई। लेकिन महल को जाने के बजाय वो बाहर छुपकर खड़ी हो गई। वो 1 घंटा इंतजार करती रही, लेकिन कोई ना आया। फिर अचानक इसे अंदर से मध्यम मध्यम आवाजें सुनाई दी। उसने कान दरवाजे पर लगा दिया। वहां सचमुच कोई कमरे में चल फिर रहा था। बुढ़िया ने एक आंख दरवाजे की दर्ज पर रखी और दूसरी आंख मीच कर अंदर देखा। कमरे में एक नौजवान लड़की, जिसका चेहरा चांद से ज्यादा हसीन था, झाड़ पोंछ कर रही थी। बुढ़िया दरवाजा खोलकर कमरे में चली गई और लड़की से पूछा, बेटी तुम कौन हो? लड़की ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने इसे पकड़ लिया था और अपने पास बिठा लिया था। बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? लड़की को नौकरानी का जुल्म याद आ गया। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। बुढ़िया ने लड़की को अपनी बाहों में ले लिया और सर चूम कर दोबारा से पूछा। अब लड़की ने तमाम कहानी सुनाई। जब बुढ़िया को मक्कार नौकरानी की चालाकियों को पता चला कि उसने इरादा किया कि वो शहजादे के सामने ये राज फाश कर देगी ताकि इसको असल हकीकत का इल्म हो जाए, उसने लड़की को हौसला दिया, वरना ना रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया इसी वक्त महल में गई और शहजादी से कहा, मैं आपसे अलहदगी में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेहरबानी करके मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चलिए। शहजादे ने बुढ़िया की दरख्वास्त को खुशी से मंजूर किया। बुढ़िया शहजादे को लेकर घर पहुंची
تو رات کا کھانا تیار تھا۔ دونوں نے مل کر کھایا، اس کے بعد کافی پی۔ اب کافی کے پیالے کون لے کر آئے اور پیالوں میں کافی کون بنائے؟ سنہری پری کے سوا یہ کام کون کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اٹھتا ہوا زمین پر گرنے والا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، تو شہزادہ صاحب، یہی آپ کی اصلی بیوی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے آ گئی یہاں؟ شہزادے کی جیت خوشی میں بدل رہی تھی۔ بڑھیا نے شہزادے کو نوکرانی کی چالاکی کی داستان حرف بحرف سنا دی۔ شہزادے کو لگا جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنا دی۔ میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا۔ مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ شہزادہ سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔